Okay, so now we are moving ahead and we are going to be doing chapter 3 of directors, which is appointment and remuneration of managerial personnel. Okay, in numbers, if you ask me how many sections does this chapter have, numbers में तो बहुत छोटा है, 196 से लेके 205 तक ही it goes. But content wise, if you ask me, this is very important and this will take enough time. ऐसा नहीं है कि वो फटाफट हो जाएंगे, ये और फटाफट हो जाएगा, या they will take forever and this will be like within minutes. It will take almost half of their time because there are 23 sections, there are 10, so it will still take time. Okay, so please understand, because I'll tell you what exactly this chapter is. This chapter talks about appointment and remuneration of managerial personnel. इसमें ना 4 sections हैं जो कि बहुत ही important है, बहुत ही, बाकी everything else is manageable. Okay, so there's section 196, there's 197, then there's 202, and then there's 203. They are very important, very important. इन दोनों के साथ there is something called as schedule 5. As soon as you are done with this part, consider 90% of the chapter as over. Okay, because these two should be called as 10%. तो इस लाइक बाकी क्या पढ़ने का नहीं है, ऑफकोर्स पढ़ने का है, बिकॉज MCQs की दुनिया में यू कैन टेक दैट रिस्क ऑफ नहीं पढ़ा, यू नेवर नो ना क्या पूछ लेंगे. ठीक है, सो you have to study, but if you ask me, they won't take much time of yours. Okay, anything that will take time is this. Okay, whereas this is okay. So I'm just telling you well in advance. And these three are such, अगर 196 नहीं पढ़ा तो शेड्यूल 5 नहीं पढ़ पाओगे, 197 नहीं पढ़ा तो भी शेड्यूल 5 नहीं पढ़ पाओगे, और अगर शेड्यूल 5 नहीं पढ़ा तो ये दोनों इनकम्प्लीट रहेंगे आपके पास, तो आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में. ओके, इसलिए ध्यान से सुनना समझना. इन दिस यू विल नीड द प्रीवियस चैप्टर्स रिविजन ऑल्सो, बिकॉज वील स्टार्ट लिंकिंग सेक्शंस ना. ओके, now moving ahead, talking about this is the first thing that the introduction of the chapter. Now moving ahead with the chapter. Okay, please understand this thing. There are 4 sections, most important. We are starting with the first one, that is 196, which is appointment of MD, WTD and manager. MD, WTD and manager. ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट की बात हो रही है. दिस पर्टिकुलर सेक्शन हैज 5 सब सेक्शंस गाइस. ओके, एंड ऑब्वियसली यहाँ से हमें पता चलेगा सिर्फ 5 सब सेक्शन होने से चैप्टर वो सेक्शन छोटा नहीं हो जाता. इट्स बिग इनफ टू कवर अप एवरीथिंग. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, वील डू वन एट अ टाइम, so that once you've understood one, then we go ahead with 2, 3, 4. This is what we are planning. Okay, so now if you understand, we've just kept side by side the book also ready so that you can understand. You don't have to look into your book again and again. Okay, so सबसे पहले ना, this has 5 subsections. 5 subsection में से first वाला subsection, the first that we are talking about, is a rule that MD and manager साथ में allowed नहीं होता कंपनी में. Reason being, MD और manager के functions are same. It is just that MD is a manager with directorship. Okay, whereas manager does not have directorship. So anybody, be it MD, be it manager, they hold substantial powers of management. Okay, उनके पास ना मैनेजमेंट के substantial powers होते हैं, इसीलिए उसको मैनेजर बोलते हैं. लेकिन if the director has substantial power, he is called managing director. So दोनों में से कोई भी एक ही हो सकता है ना. Your substantial means majority. तो मेजॉरिटी पावर्स तो एक टाइम पे एक के पास ही हो सकते हैं. तो एंड दिस मैनेजर इज नॉट फालतू कोई भी ब्रांच मैनेजर. नो, इट इज़ द कंपनीज मैनेजर. ओके, सो MD एंड मैनेजर में से कोई भी एक ही चलता है, एक टाइम पे दोनों साथ में नहीं. सो बोथ टुगेदर इज नॉट अलाउड. दिस इज सबसेक्शन 1, विच इफ यू सी हियर, MD एंड मैनेजर बोथ एट द सेम टाइम नॉट अलाउड. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड वन. इनका जो टर्म होता है ना MD, WTD, मैनेजर का, द टर्म इज मैक्सिमम 5 years एट अ टाइम. Okay, and then they can be reappointed for another 5 years and so on. लेकिन यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है. सी, ये MD, WTD मैनेजर आर दोज टाइप. नॉर्मली किसी का भी reappointment happens only at the end of the term. Okay, whereas here if you talk about MD, WTD manager, these are important people. If you tell them तुम्हारा reappointment term खत्म होने पे पता चलेगा whether you will be reappointed or no, उनके point of view से if you understand, for them this is a job. एंड जॉब गारंटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो इफ यू टेल देम कि हमको नहीं पता तुम रीअपॉइंट हो गया नहीं, हम तब बताएंगे,
तो तब तक ना दिल स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर जॉब, लाइक इन द लास्ट ईयर दिल स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर अदर जॉब्स, एंड अगर कुछ मिल गया ना अच्छा काम तो दिल लीव यू, आई मीन, एंड दे आर नॉट रॉन्ग एट देयर प्लेस. तो हमने कहा कैसे इंश्योर करके उसको भी भरोसा रहे हम कंटिन्यू करेंगे और हमें भी वो नेक्स्ट ईयर मिले. सो दे सेड कोई बात नहीं, इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर टर्म दे विल बी अलाउड टू बी रीअपॉइंटेड. नॉर्मली सबका रीअपॉइंटमेंट होता है टर्म खत्म होने के बाद, इनका रीअपॉइंटमेंट होता है लास्ट ईयर ऑफ द टर्म. इज दिस ओके? सो term maximum 5 years, can be reappointed for another 5 years. No reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of his term. Okay, but this does not apply to a government company. Make sense? Okay, now coming to the third point. ये सबसे important है, which is qualifications or you call it disqualifications to become MD, WTD manager. MD, WTD manager. इनके लिए qualification, disqualification सिर्फ 4 हैं. ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये 4 क्या क्या है? सबसे पहला वाला इज एज. ठीक है, एज 18 to 21 तो याद रखना अलाउड ही नहीं है. 18 to less than 21 तो अलाउड ही नहीं है, MD WD मैनेजर नहीं बन सकता. हाँ, इफ यू आर 21 years to less than 70 years तो यू विल बी अपॉइंटेड बाय OR, एंड इफ यू आर 70 एंड अबव यू हैव टू बी अपॉइंटेड ओनली बाय SR. मेक सेंस? अपॉइंटमेंट अगर 70 years से कम तक है तो SR, 70 भी हो गया तो OR, अगर 70 भी हो गया तो SR. सो इफ यू अंडरस्टैंड, 21 to less than 70 OR, 70 and above SR. मेक सेंस? एज टू वाई आर यू अपॉइंटिंग सच अ पर्सन, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है. रीजन बीइंग अ पर्सन हु इज अबाउट 70 विल श्योरली बी मेंटली फिट. ओके, उनके जितना एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होगा, बट ही मे और मे नॉट बी फिजिकली फिट. MD WT मैनेजर एक ऐसा पोस्ट है जिसमें यू नीड अ पर्सन हु इज फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव. ओके, सो यू हैव टू गिव अ जस्टिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट. सो दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड वन, अब ना सेकेंड वाला ना आपको सुना सुना लगेगा, इसलिए ध्यान से सुनना. दिस यू शुड नेवर हैव बीन UDI और डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. नेवर मतलब नेवर. डू यू रिमेंबर? हमने ये कहीं पढ़ रखा है या कहाँ पढ़ा है? नेवर हैव बीन UDI और डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. कहाँ पढ़ा है? 164 में. अब ना वो 164 का चार्ट याद करो. यू नो, इंसॉल्वेंट होने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन टू कोर्ट होता है. हु कैन अप्लाई? या तो हिमसेल्फ या फिर क्रेडिटर्स. उसके बाद टाइम लगेगा, फिर फाइनल हियरिंग होगा. जस्ट रिकलेक्ट गाइस, बहुत काम आने वाला है. ये वाला चार्ट ना एवरीबडी एट द एंड वुड वांट टू बी लाइक मेरे को इसको कॉपी करना है, इसलिए पहले ध्यान से सुन लो. फाइनल हियरिंग होगा और आपका लिक्विडेटर अपॉइंट होगा. ओके, फिर वो टाइम आएगा व्हेन योर एसेट्स विल बी सोल्ड, योर लायबिलिटीज विल बी पेड. This is the time when your assets are being sold and liabilities are being paid. This is called undischarged insolvency. फिर याद है आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, बधाई हो आप कंगालू है, सर्टिफिकेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, एंड इसके बाद यू आर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट, we just using the numbers so that हमारा ये काम ठीक से हो जाता. कलर्स, सो 164 इज़ रेड एंड 196 इज़ ब्लू. ठीक है, ये वाला ना 196 है. 164 याद हो तो उसमें 2 आए थे, I1 I2. ओके, वी जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट I1 क्या था, I2 क्या था. ध्यान से सुनना और समझना इसको. ना जैसे अगर 164 यूज्ड टू से अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं बनेगा डायरेक्टर, राइट? सो दैट मीन्स इस दौरान 164 एप्लीकेबल है. ठीक है, वेराज 196 की भी पॉइंट सुनो तो 196 ने भी UDI को मना किया है. सो यहाँ पे 196 भी लगता है इन दिस ड्यूरेशन ऑफ UDI. ओके, वेराज 164 में I2 क्या था? अ पर्सन वाज सेल्फ अप्लाइड. सो इफ यू अंडरस्टैंड, ये वाले बंदे को, दिस पर्सन इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, इसको 164 एप्लीकेबल है. ओके, क्योंकि अ पर्सन वाज सेल्फ अप्लाइड डायरेक्टर नहीं बनता. ओके, लेकिन 196 इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, तो यहाँ पे 196 नहीं लगता है. ध्यान से सुना, एंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर. ओके, देन कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स अप्लाई. इस ड्यूरेशन में तो इफ़ यू नो ना 164 लगता है ना 196 लगता है, कुछ नहीं लगता है. वेराज व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इस ड्यूरेशन में इफ यू सी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट का रूल 196 में तो है. सो यहाँ पे 196 तो लगता है, बट 164 नहीं लगता, बिकॉज 164 बस 2 लोगों को डिस्क्वालीफाई करता है. ओके, नाउ
ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई एम गोइंग टू आस्क यू 4 क्वेश्चंस. ये जो 4 सिनेरियो दिखे, क्रेडिटर्स अप्लाई, सेल्फ अप्लाइड, यूडीआई एंड डिस्चार्ज, ये 4 टाइम्स मैं आई एम गोइंग टू आस्क यू 4 क्वेश्चंस ईच. कैन ही बिकम डायरेक्टर, कैन ही बिकम एमडी, WTD, मैनेजर? सोच के रखो आंसर्स, वील आंसर देम टुगेदर. सोच लिया? ना लेट्स आंसर इट. एंड आंसर करोगे ना तो मुझे सेक्शन के हिसाब से आंसर चाहिए कि कौन से सेक्शन के हिसाब से दे रहे हो. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ये ड्यूरेशन फर्स्ट. जब हिमसेल्फ अप्लाइज, कैन ही बिकम द डायरेक्टर इन दिस ड्यूरेशन? येस और नो? नो. कौन सा सेक्शन? 164. तो रेड कलर इज 164. ओके. कैन ही बिकम द MD? यस, क्योंकि 164 लगता है, 196 नहीं लगता. बराबर. MD बनने के लिए नीड टू बी ए D फर्स्ट. और जो D नहीं बन सकता वो MD कहाँ से बना? सो इफ यू अंडरस्टैंड, ही कांट इवन बिकम MD, बट नॉट बिकॉज ऑफ 196, बिकॉज ऑफ 164. ओके, सो ऑटोमेटिकली कांट इवन बिकम द WTD. कैन ही बिकम द मैनेजर? यस, क्योंकि यहाँ 196 नहीं लगता और मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर नहीं बनना पड़ता. समझा क्या? दोनों सेक्शन साथ में लगाने पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट वन. व्हेन क्रेडिटर्स अप्लाई, कैन ही बिकम द डायरेक्टर? हाँ, कोई सेक्शन नहीं लगता यहाँ पे. कैन ही बिकम MD? नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज कौन से कलर से लिखो? विल बी लाइक दोनों सेक्शन ना. नहीं, सी जो बड़ा सेक्शन होता है ना, पहले उसको चेक करते हैं. सी इफ द बड़ा सेक्शन इज स्टॉपिंग यू तो छोटा कैन नॉट अलाउ. अगर कभी 196 बोलते नहीं बन सकते तो 164 अलाउ भी करेगा, यू कांट बिकम. राइट. जब 196 बोलता है ओके मेरे को प्रॉब्लम नहीं, तब यू गो एंड चेक कि कोई और तो मना नहीं कर रहा. बट जब वो खुद ही मना कर रहा है तो किसी और की तो जरूरत ही क्या है? या फिर अगर वो खुद ही हाँ बोल रहा है तो फिर और किसी के हाँ की वैल्यू क्या है? ओके, कोई मना नहीं करना चाहिए. योर इफ यू अंडरस्टैंड, 196 ही बहुत है. एंड 196. What I just told you, you'll understand now. Can he become a director when UDI? Can he become a director? No, क्योंकि 164 बैठा है. Can he become MD? Hello? You'd be like, हाँ MD तो बन सकता है ना. अच्छा, UDI तो नहीं बन सकता. अब किसकी वजह से? जब खुद 196 ने मना कर दिया तो कोई भी हाँ बोले क्या फ़र्क पड़ता है? सो इफ यू अंडरस्टैंड, ही कैन नॉट बिकम बिकॉज ऑफ 196. MD भी नहीं, WTD भी नहीं, मैनेजर भी नहीं. मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट वन. कैन ही बिकम अ डायरेक्टर आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज्ड? कैन ही बिकम अ डायरेक्टर? यस, क्योंकि 164 मना नहीं करता. कैन ही बिकम MD? 196 बैठा है. ही शुड नेवर हैव बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. WTD, मैनेजर. आर यू गेटिंग? ये कलर क्यों खेला हमने? बिकॉज ऐसे जब क्वेश्चन पूछता ना, यू जस्ट थिंक ऑफ वन सेक्शन. ICI इज थिंकिंग ऑफ मेनी. अंडरस्टूड दिस यू कैन अंडरस्टैंड ओनली इफ तुमने 164 वाला वीडियो देख लिया है, सुना है, समझा है, याद है तो ही. वरना तो ये हार्ट अटैक है तुम्हारे लिए. इज दिस ओके? नाउ मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन. सो दिस वॉज फर्स्ट वन डन. सेकेंड वन, अंडरस्टैंड इंसॉल्वेंट डन. थर्ड वाला, दिस should never have suspended payment to creditors or made a composition with them. So ये forever disqualification होते हैं. So you should never have suspended payment to creditors or made composition with them. फोर्थ वाले पे आओ. फोर्थ वाले में they say he should never have been imprisoned for any offense. They say an offense, so it's like any offense for more than 6 months. ये भी कहीं देखा है? कहाँ देखा है? ऑब्वियसली 164 में देखा है. ठीक है, अब आई जस्ट रिमाइंड यू व्हाट 164 वाज. 164 ने बोला था दैट शुड नॉट हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज इन विच ही इज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 months और मोर एंड 5 years हैव नॉट elapsed. ऐसा रूल था वहाँ पे. ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट 196 क्या बोलता है? 196 सेज ही शुड नेवर हैव बीन इम्प्रिजन्ड for any offense for more than 6 months ever. Like ऊपर आएगा इसमें 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन होता है. यहाँ पे तो कभी भी गए तो सदा के लिए गए, क्योंकि यहाँ के सारे डिस्क्वालिफिकेशन इफ यू सी दे स्टार्ट विद द वर्ड नेवर.
ही शुड नेवर हैव बीन अनडिस्चार्ज, ही शुड नेवर हैव बीन दिस, नेवर हैव बीन दैट, सब नेवर है, क्योंकि एक बार गए तो सदा के लिए गए. ओके, ना लेट अस मेक समथिंग जैसा पिछला वाला बनाया था चार्ट मस्त वाला. ओह आई एम सॉरी. Yeah, it's fine now. So, come back. He should never have been imprisoned. So, ये ना हमेशा never वाले rules होते हैं. Okay? ना सबसे पहली चीज़ let's make a chart जो जैसे अभी पिछला वाला बनाया था. So, if you compare both of these, ये हो गए इनका offense which is same. Because that says moral turpitude, otherwise this says any offense, so that becomes same. This is different. Imprisonment is different. क्योंकि वहाँ पे more than equal to 6 months है, more than 6 months है. And obviously this is also different. Okay, so let's make an analysis on the basis of imprisonment. Okay, imprisonment क्योंकि offense तो same है ना. Imprisonment less than 6 months, equal to 6 months and more than 6 months. Okay, just use your brains and keep listening. You will have a good answer then. Okay, less than 6 months, इक्वल टू 6 months, मोर देन 6 months. तुम्हें बस ये सोच के बताना है कब 196 लगता है, कब 164. मेरे को बताओ लेस देन 6 months 164 लगता है. डू दे डिस्क्वालीफाई यू इन लेस देन 6 months? नो. ओके, इक्वल टू 6 months पे 164 लगता है. मोर देन इक्वल टू है ना. यस यस यस. मोर देन पे अगेन यस. ठीक है. टॉकिंग अबाउट 196, लेस देन 6 months पे 196 लगता है. नो. इक्वल टू 6 months पे 196 लगता है. नो. मोर देन है. मोर देन 6 months पे 196 लगता है. यस. इज दिस ओके? अब वही 4 क्वेश्चन जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अभी वहां पूछे थे वो मैं यहाँ पूछने वाली हूँ. बी रेडी. डायरेक्टर, MD, WTD, मैनेजर, तीनों केसेस में यू हैव टू आंसर. थिंक एंड कीप. स्टार्ट करें? ओके, नाउ जस्ट टेल मी डायरेक्टर, MD, WTD, मैनेजर. बोले? ओके, सबसे पहले बोलो यहाँ पे फर्स्ट केस में कैन ही बिकम अ डायरेक्टर लेस देन 6 months? यस ही कैन. कैन ही बिकम MD? इफ यू अंडरस्टैंड 196 बड़ा सेक्शन है. यस यस यस, क्योंकि यहाँ कोई सेक्शन नहीं लगता. ओके, आप सोच समझ के जवाब देना. कैन ही बिकम अ डायरेक्टर इक्वल टू 6 months? कैन ही बिकम अ डायरेक्टर? नो, क्योंकि 164 बैठ है. कैन ही बिकम MD? 196 नहीं लगता, बट टू बिकम MD यू नीड टू बी अ D फर्स्ट, तो वो ये भी नहीं बन सकता 164 की वजह से. WTD 164 की वजह से. मैनेजर यस 196 लगता है, 164 नहीं. ओके, कमिंग टू द लास्ट साइड. कैन ही बिकम डायरेक्टर? नो. कैन ही बिकम MD? अब तो खुद 196 मना कर रहा है, किसी और की जरूरत ही क्या है. नो. कैन ही बिकम WTD? नो. कैन ही बिकम मैनेजर? नो. नाउ द ओनली डिफरेंस यू हैव टू नोटिस इज यहाँ पे ना ये तीनों कुछ नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ 164. सो दिस इज ओनली फॉर 5 years. बाजू वाले साइड भी वो तीनों नहीं बन रहा है, बट द डिफरेंस इज दिस इज फॉर 5 years whereas these two are forever. Actually, all the 3 are forever, but I'm just comparing the first 3. Make sense? Okay. So, moving ahead, this is the analysis that you must learn. Okay, you must learn it so well कि आपको कितना भी घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछे, you know how to mix 2 sections. Okay, so this was at any time being convicted by court for an offense and is sentenced for more than 6 months. Is this okay? ASC reference, read point B and D with 164 in mind. That is what I just did. ठीक है, moving ahead. Schedule 5. Now please listen to me carefully. Schedule 5 आया कहाँ से? We'll come to it first. पहले 196 खत्म करते, फिर हम टेक्स्ट बुक के Schedule 5 पे भी जाएंगे. इन्होंने क्या, हमने यहाँ पे ना पहले आपको Schedule 5 दिया क्योंकि वो रिलेटेड है, फिर 196 खत्म किया, बट हम पहले 196 खत्म कर रहे हैं, उसके बाद Schedule 5 पे आएंगे. Now, do you remember हम कहाँ थे? We were here. ये सबसेक्शन 1 है, ये सबसेक्शन 2 है, ये क्वालिफिकेशन चल रहा था जिसमें 4 थे. You can remember it easily as ABCD. ABCD कैसे? A is age, B is insolvent, that is bankrupt. We remember it as bankrupt.
सी इज क्रेडिटर्स के साथ कोई ये नहीं क्या होना चाहिए, राइट। एंड डी बस तुम खुद से याद रख लो इम्प्रिजनमेंट का, ठीक है। दिस यू रिमेंबर एज डी समहाउ, तो ABCD तुम्हें याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इतने क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है, यू विल नीड समथिंग टू रिमेंबर। इज दिस ओके? सो ना मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट 194 विच इज 196 सॉरी सबसेक्शन 4। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला अपॉइंटमेंट कैसे होगा। गाइस प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTD एंड मैनेजर। ओके, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम यू टू यू, who appoints MD, WTD manager? One simple question, कॉमन सेंस से आंसर देना, आपको पता होगा, बुक नहीं घुमाना प्लीज। Who appoints MD, WTD manager? शेयरहोल्डर्स, बोर्ड, पक्का या तुक्का? तुम्हें पता है, तुम्हें ना मुझे इसका पक्का आंसर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। I'll tell you how। तुम्हें ABC दिल फ्रॉक करके पढ़ा है, याद है? क्या था ABC? फुल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ, ABC दिल फ्रॉक थे क्या? पावर्स एक्सरसाइजेबल ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग 179 में थे, ठीक है। उसमें ABC दिल फ्रॉक का जो ओ था वो क्या था? अदर्स में 3 थे, PAA, उसका सेकेंड ए क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ KMP कौन होते हैं? MD, WTD मैनेजर, CEO, CFO, CS। मतलब हम वहाँ पढ़ के आए हैं, दे अपॉइंटेड ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग, बट हमें ये नहीं पता अपॉइंट कौन करता है। हु अपॉइंट्स? बोर्ड। सो दे आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड, ठीक है, बट इट इज टू बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। अपॉइंटेड बाय बोर्ड, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, प्लस इट हैज टू बी एज पर शेड्यूल 5। पहले ऐसे होता था शेड्यूल 5 नहीं है तो CG अप्रूवल ले लो, अब वो नहीं रहा, सो इट हैज टू बी एज पर शेड्यूल 5। एंड शेड्यूल 5 का भी पार्ट 1 में कुछ और 5 क्वालिफिकेशंस हैं जो अब 4 बचे हैं, सो दैट यू हैव टू फॉलो। इज दिस ओके? अब लौट के आते हैं अपॉइंटेड बाय बोर्ड, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड देन शेड्यूल 5। बट शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे एट द नेक्स्ट GM, आफ्टर अपॉइंटमेंट जो भी GM आएगा, टिल देन ही इज वर्किंग, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर बाद में शेयर होल्डर्स ने डिसअप्रूव कर दिया तो द प्रायर एक्ट्स दैट ही हैज ऑलरेडी डन, वैलिड और वॉइड? वैलिड। ये है 196 सबसेक्शन 5। अगर डिसअप्रूव्ड तो भी इट विल बी वैलिड। पहले ये ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस सबसेक्शन 4, डू यू रिमेंबर वो जो टर्म का रूल था ना, टर्म का ये वाला, दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज, ओके, बाकी सब एप्लीकेबल था गवर्नमेंट को। एंड ये सबसेक्शन 4 जो है ना, 4, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। अब बस कॉमन सेंस लगाना प्लीज। 4 ने बोला था अपॉइंट करो और अप्रूव कराओ, और 5 ने बोला अप्रूव नहीं हुआ तो वैलिड, तो जिसको 4 नहीं लगता उसको 5 भी तो नहीं लगेगा। मेक सेंस? सो दिस इज 5 सबसेक्शंस ऑफ 196। लेकिन 196 तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमें ये ना पता चल जाए, ठीक है। और इसी को पता करने के लिए वी आर गोइंग टू शेड्यूल 5। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद शेड्यूल 5, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ओवरऑल शेड्यूल 5 है क्या चीज़, ठीक है। देखो, लुक ओवर हियर प्लीज वेरी केयरफुली। शेड्यूल 5 के ना 3 पार्ट्स हैं, ओके। दिस पार्ट 1, दिस पार्ट 2 एंड देन देयर इज पार्ट 3, ओके। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, 3 पार्ट्स हैं ऑलरेडी शेड्यूल 5 के। पार्ट 1 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTD मैनेजर, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल 5 था ना, वो इसके बारे में बात हो रही थी, MD, WTD मैनेजर। Whereas part 2 will talk about remuneration. So if you understand na logically, this part is to be started with 196 and this part is to be started with 197, जो कि remuneration next section, ठीक है। Now the question is, अच्छा तो ये part 3 क्या करने बैठा है इधर? Part 3 में there is a certificate to be obtained from your auditor, whole time CS or any practicing CS that you have complied with all the provisions of part 1 and 2. इसका एक सर्टिफिकेट है जो लेना है और फिर ROC के पास सबमिट करना है। तो पार्ट 3 इज अ सर्टिफिकेट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है मेन कंप्लायंस, ओके। अभी जो हम करने आ रहे हो पार्ट 1 है। पार्ट 2 का भी आई वॉन्ट यू टू टेक एन आइडिया, सिनॉप्सिस एज टू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो
आफ्टर वंस यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली शेड्यूल 5 है, इसमें थोड़ा सा और जान लो. ये जो रेम्यूनरेशन पार्ट है ना, दिस रेम्यूनरेशन पार्ट फर्दर हैज़ मोर इन टू इट. दिस थिंग, दिस रेम्यूनरेशन हैज़ 5 सेक्शंस. ओके, इसके अंदर 5 सेक्शन आएंगे. इसमें तो चलो 4 ही कंडीशंस आएंगी अपॉइंटमेंट में. ओके, दैट इज़ पार्ट 1 में. पार्ट 2 में 5 सेक्शन है. सेक्शन 1, 2, 3, 4 and 5. आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया ये होने क्या वाला है, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर शेड्यूल 5. ओके, सेक्शन 1 चलो छोटू सा है, एक ही सेंटेंस में ख़त्म हो जाएगा. सेक्शन 2 में ना 2 ऑप्शंस हैं, ए बी. ओके, ए में इफेक्टिव कैपिटल के 4 स्लैब्स हैं जो याद रखने हैं. इसमें 4 कंडीशंस हैं और इनकी क्यूमुलेटिव 4 और कंडीशंस. 3 में 3 केसेस हैं और उनकी क्यूमुलेटिव 3 और कंडीशंस हैं. ठीक है, हर केस की अपनी कंडीशन प्लस इनकी क्यूमुलेटिव कंडीशन है. 4 में एक कैलकुलेशन है विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड 5 में एक कंडीशन है. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो. इतना सब पढ़ना है, दैट इज शेड्यूल 5. This part we'll cover up with 196 and this part we'll cover up with 197. Okay, so now moving ahead, talking about वहाँ जहाँ हम थे. If you recollect इस एक पेज के पहले शेड्यूल 5 पार्ट 1 फॉलो करना है टू अपॉइंट somebody as MDWTD मैनेजर. तो हम बस यही बात कर रहे हैं कि जिसको हम MDWTD मैनेजर बनाना चाहते हैं उसके क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट उसके क्वालिफिकेशंस, देयर वर 5, नाउ देयर आर 4. एक ओमिट हो गया. ठीक है, तो अब वो 4 क्वालिफिकेशन सुन लो. सबसे पहला क्वालिफिकेशन इज ही शुड नेवर हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर एनी टर्म. मतलब एक दिन के लिए भी नहीं. ओके, यानी फिर अभी तो 6 महीने पढ़ाया था, यहाँ स्पेसिफाइड एक्ट्स हैं बस उनमें. ठीक है, एनी टर्म, और ही शुड नेवर हैव बीन फाइंड फॉर मोर देन ₹1000 अंडर 16 एक्ट्स. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 16 एक्ट्स हमेशा से थे. अब इसमें अमेंड होके आए 3 न्यू एक्ट्स. सो देयर आर 19 एक्ट्स. इन 19 एक्ट्स में उसने एक दिन का भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ये 19 एक्ट्स याद रखने पड़ेंगे? यू थिंक आई आस्क यू टू रिमेंबर 19 एक्ट्स? यस आई विल. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि ना ऐसे बहुत से एक्ट्स हैं जो आपने सुने या प्रोबेबली आपके सिलेबस में है बट इस लिस्ट में नहीं. सो व्हाट हैपेंस इज, ऐसे ने अगर तुमसे उन एक्ट्स में 5 दिन का इम्प्रिजनमेंट पूछ लिया ना, यू विल नॉट बी एबल टू राइट कि वो डिस्क्वालिफाइड है क्वालिफाइड है. जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उस लिस्ट में नहीं है, इंश्योरेंस एक्ट नहीं है, इरडा नहीं है, कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं है. सो उनमें अगर कॉम्पिटिशन एक्ट है, बाकी ये जो 3 एक्ट्स थे ये नहीं है. एंड देयर आर सो मेनी एक्ट जो उस लिस्ट में नहीं है. सो नाउ इट्स लाइक अगर उन एक्ट्स में वो गया 5 दिन के लिए तो आप यू नॉट बी श्योर कि उसको डिस्क्वालिफाइड लिखे या क्वालिफाइड. तो सिर्फ ये 19 एक्ट्स ही हैं जिसमें आप एक दिन के लिए भी नहीं जाने चाहिए. इज दिस ओके? ना इट्स लाइक मैम 19 एक्ट्स कैसे याद होंगे? सुनो ना, ABC दिल फ्रॉग याद है क्या? वो 13 थे, तो अब 6 और ही तो हैं. एंड ट्रस्ट मी, इट्स ईजी. डू नॉट गो रीडिंग एनी लिस्ट, सिर्फ फोकस करो और यहाँ ध्यान दो. वी रिमेंबर इट एज SFM, CU, ICICI एंड FCC. ये 16 है. ठीक है, SFM, CU, ICICI एंड FCC. अगर आपने ये याद कर लिया ना, इट विल बी ईजी. आई टेल यू व्हाई. अब आपने करना इतना है, आपको गेस करना है खाली. दिस हम कैसे गेस करेंगे यार, कुछ भी बोल रहे हो आप. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये आपके सिलेबस में, या तो सिलेबस में या जान पहचान में, ऐसे वाले से है. जहाँ तक हो सके, वॉट एवर इज नॉट देयर आई टेल यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले S1 देखो, तुम्हें पता होगा S1 जब भी S 2 बार F 2 बार है तो एक वर्ड कॉमन होगा, अल्फाबेट नहीं. ठीक है, S1 आपके सिलेबस में. SEBI. ओके, नेक्स्ट S, सेक्रा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. F1 FEMA. F2 ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो जस्ट रिमेंबर इट इज़ FTPRA, फॉरेन ट्रेड प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, FTP ITT में पढ़ा होगा आपने, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. ऑब्वियसली वो कोई एक्ट नहीं है, बट ये FTPRA है, फॉरेन ट्रेड प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट. ओके, नेक्स्ट M आपके सिलेबस में, मनी लॉन्ड्रिंग. S आपके सिलेबस में नहीं है, इट्स सिक्का, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट. ओके, E ये भी आपके सिलेबस में है, लॉ में नहीं है. मैंने कब बोला कि सिर्फ लॉ का बोलना है? और भी तो कोई, मतलब लॉ को छोड़ के और भी तो लॉज हैं, और भी तो है. 100 मार्क के 2 पेपर जो एक्ट ही हैं. याद आया? E एक्साइज. W ये था अब नहीं रहा, वेल्थ टैक्स. I 100 मार्क का पेपर, इनकम टैक्स. C जो एक्साइज के साथ पढ़ते हैं,
कस्टम्स। अब रुक जाओ, खत्म हुआ DTIDT तुम्हारा। ओके नेक्स्ट, ये समहाउ याद नहीं रहता, कोशिश करना याद रहे। ओके सी, तुम्हें इरडा पता है? इरडा, हाँ ये इरडा नहीं है, तो इट्स लाइक क्यों बता रहे हो? आई टेल यू, क्योंकि ये इड्रा है। मस्ती मस्ती हो रही है ना तुम्हारे साथ? ये इरडा नहीं है, इड्रा है। इरडा क्या है? इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। दिस इज इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, दिस इज इड्रा। ओके, आई एम रबिंग इट ऑफ, नहीं तो याद आ जाएगा अगली बार। तो दिस इज इड्रा, इड्रा। ओके सी, वापस सिलेबस में था, ओल्ड कोर्स में, नए कोर्स में हट गया। सॉरी, कॉम्पिटिशन एक्ट। ओके आई, दिस इज समथिंग जो याद नहीं रह पाता, कोशिश करना याद रह जाए। इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, वो स्टैम्प ड्यूटी भरते हो ना आप, वो वाला, ठीक है। अब ये तीनों सुन लो ध्यान से। एफ इज अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन तो पता, मैगी फंसी थी, लेड निकला था, इसी में फंसी थी, तो अभी मैगी एक्ट नहीं हो जाता, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। इसमें नेस्ले फंस चुका है, पेप्सी फंस चुका है, पेप्सी का तो रोज का है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स इसमें फंस जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज इसमें फंस जाती हैं। नेक्स्ट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, लाइक इफ यू नो, कितनी सारी चीज़ों की आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके प्राइस बढ़ाया जाता है मार्केट में, ठीक है। ऐसे सॉल्ट के साथ कभी नहीं होता, क्यों? क्योंकि यू हैव एन एक्ट कॉल्ड एज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज के मस्ती की तो पेनाल्टी बहुत यूज है। ओके एंड लास्टली वो जो तुम अभी पढ़ रहे हो 70 मार्क्स के लिए, कंपनीज एक्ट। ओके ये हुए SFMC, ICS एंड FCC। पहले ये कोशिश कर लेते हैं, बाद में ये तीन तो अभी बाकी है ना, ठीक है। ओके S1 बोलोगे नहीं तो याद होएगा नहीं। S1 सेबी, S2 सेक्रा, F1 फेमा, F2 FTPRA, M मनी लॉन्ड्रिंग, S this is done, this is done, this is done, this is done, S सिक्का, E एक्साइज, W वेल टैक्स, I सोमक इनकम टैक्स, C कस्टम। ये याद आ रहा है क्या? ये वो नहीं है, वो है, इड्रा, इर्डा नहीं है। C कंपटीशन, I ये मैंने बोला था, याद नहीं रहेगा। इंडियन स्टैम्प एक्ट, ये मैगी एक्ट, फूड अडल्ट्रेशन, ये सॉल्ट वाला एसेंशियल कमोडिटी, और ये कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब बचे तीन और, देयर आर 3 मोर राइट। सो ये जो 3 एक्ट्स है ना, ये बहुत ईजी याद रखना। वी रिमेंबर इट एज 2016, 2017 एंड 2018, 2016, 17, 18। अब 16 और 17 के तो तुम बता लोगे, 2 नए एक्ट्स जो आए हैं। 16 इज IBC, 17 इज GST एंड 18 इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंस करके बाहर भाग जाते हैं, ठीक है, जैसे माल्या। ओके सो IBC 2016, GST 2017 एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इज दिस ओके? अब तो कितना ईजी है, 16, 17, 18 SFMC, ICIS एंड FCC एंड 16, 17, 18। नाउ ऑल दैट एक लास्ट ट्राई कि हमें ये सब याद हो पाए। सो आई होप आपको याद होगा, तो ट्राई करते हैं, पता चल जाएगा अभी आपको याद हुआ कि नहीं। ओनली यू कैन नो, आई कांट नो, सो बेटर स्पीक अप। ओके सो S1 सेबी, S2 सेक्रा, F1 फेमा, F2 FTPRA, M मनी लॉन्ड्रिंग, S सिक्का, E एक्साइज, W वेल्थ, I इनकम टैक्स, C कस्टम्स, I इरडा की इड्रा, इड्रा, C कंपटीशन, I इंडियन स्टैम्प एक्ट, F वही मैगी वाला फूड अडल्ट्रेशन, C सॉल्ट वाला एसेंशियल कमोडिटी, C कंपनीज एक्ट 2016, IBC 17, GST 18, बोलो ना, नहीं बोलो ना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे इन तीनों के अपने अपने ईयर हैं, इन सारे एक्ट्स का भी अपना अपना ईयर होगा, ठीक है। नाउ इट्स लाइक, विल यू थिंक आई आस्क यू टू रिमेंबर दैट ऑल्सो? इतना कष्ट नहीं उठाते जिंदगी में, आई टेल यू व्हाई। ऐसे जब क्वेश्चन में एक्ट का नाम देगा तो ईयर देगा, तो वो जो ईयर देंगे वही लिख लो, और अगर उन्होंने नहीं दिया तो जब उन्होंने ही नहीं दिया तो हम क्यों स्मार्ट बने, तो मत लिखो। बट ऐसा कभी होता नहीं, वो देती है आपको। बस इतना, ये लिस्ट आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि अगर वो आपको बोले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उसको लेट्स से सेबी में 5 डेज का इंप्रिजमेंट हुआ, क्या नहीं बिकम DWD मैनेजर? नो, शेड्यूल 5 सदा के लिए गए आप। ओके अगर वो बोले सेबी में
उसको, या फिर लेट्स से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कि इस लिस्ट में नहीं है, इफ दिस से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उसको 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हुआ तो चलो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 5 डेज का इम्प्रिजनमेंट हुआ, डिस्क्वालीफाइड? नो। इरडा इरडा इड्रा नहीं, इरडा में 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हुआ, डिस्क्वालीफाइड? यस। रुको, कैसा? क्योंकि यहां नहीं है तो क्या हुआ? 196 को गोली मार के आए क्या हम? यू शुड नॉट बी इम्प्रिजन फॉर एनी ऑफेंस फॉर मोर देन 6 months ना, उसमें तो सारे एक्ट आते हैं। हेलो, ये 16 + 3 19 एक्ट्स में 6 months। सो इफ यू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें समझ में अभी हुआ क्या है, एनीबॉडी स्टिल थिंकिंग कि क्या हो गया सडनली? देखो, इम्प्रिजनमेंट ओके अंडर 16 + 3 एक्ट्स तो नॉट इवन 1 day, ठीक है, 1 दिन का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अंडर अदर्स जो उस लिस्ट में नहीं है, मोर देन 6 months तो नहीं होना चाहिए ना। 196 मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस गाइस? समझा? पक्का? ओके ना। सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ शेड्यूल 5 Part 1। 4 हैं ऐसे, बट यही सबसे भयानक था, ठीक है। नेक्स्ट वाला इज he should never have been detained under Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act। Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act। जैसे वो SFMCU, ICICI एंड FCC में तो 16 आ गए थे, ये पूरा एक ही है, ओके। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। द फंडा है, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज को प्रॉपर्ली कंजर्व करेंगे ना तो वो स्मगलिंग में जाएगी नहीं, और अगर वो स्मगलिंग में नहीं है तो स्मगलिंग होती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, अपने आप स्मगलिंग रुक जाएगी। इज दिस ओके? ये है फंडा, तो इसलिए इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। इसमें तो आप कभी डिटेन्ड भी नहीं होने चाहिए, ओके। डिटेन मतलब फॉरगेट अबाउट प्रूव्ड गिल्टी और नो, डिटेन भी नहीं हुए होने चाहिए, आपकी इंक्वायरी भी नहीं बैठनी चाहिए इसमें, आपका नाम नहीं आना चाहिए इन शॉर्ट इस केस में, ओके। और अगर आया तो आप सदा के लिए, ठीक है। बट देयर इज वन थिंग दैट यू कैन डू इन बोथ दीज केसेस, 16 एक्ट्स वाला भी एंड ये वाला भी, मतलब शेड्यूल 5 वाले। यू वैसे सीजी अप्रूवल अलाउड नहीं है, कंपनी कांट टेक सीजी अप्रूवल टू अपॉइंट सच अ पर्सन, बट अगर मेरे को अननेसेसरी इंप्रिजनमेंट हुआ इसमें, मैं तो डिस्क्वालीफाई होगी ना, आई कैन गो टू सीजी एंड गेट दैट डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव्ड। सो द पर्सन हिमसेल्फ कैन गो टू सीजी एंड गेट द डिस्क्वालिफिकेशन इटसेल्फ रिमूव्ड। सीजी चाहेगा तो निकाल देगा डिस्क्वालिफिकेशन एट वंस, उसके बाद एक और बार जाके आए, ट्रिप मार के आए जेल का, तो फिर से लग जाएगा। इज दिस ओके? थर्ड पॉइंट, 4 है ना शेड्यूल 5 के। थर्ड इज एज, कहीं सुना सुना लगेगा, सेम वो 21 to 70, लेस देन 70 OR, 70 एंड अबव SR, सेम है, ओके। एंड फोर्थ वन इज ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो फोर्थ था वो ओमिट हो गया, फिफ्थ वाला रेसिडेंट ऑफ इंडिया था जो अब ऑटोमेटिकली फोर्थ हो गया। सो इफ यू सी ओवर हियर, शेड्यूल 5 Part 1, not been sentenced to imprisonment for any period और फाइन एक्सीडिंग 1000, 16 + 3 एक्ट्स, ठीक है। नेवर डिटेन्ड अंडर कॉफिप्सा, इट्स नॉट कॉफी स्पा, इट्स कॉफिप्सा, राइट, ओके। नेक्स्ट, इसमें सीजी के पास जाके आप एग्जामिशन ले सकते हो। एज वाला क्राइटेरिया ये ओमिट हो गया, और ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेक सेंस? ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो अब याद रखना, अगर आप किसी को MD, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं आपको, if you're trying to appoint somebody as MD, WTD and manager, of course the first section that comes to your mind for all these 3 is 196, but that's not it. To appoint somebody as MD, WTD you also have to check 164, ठीक है, प्लस 196। अगर मैनेजर ना हो तो 164, 196 प्लस शेड्यूल 5 भी तो है, वो तो मैनेजर को भी लगता है। हेलो, तो याद रखना ये तीनों का कॉम्बो जब होएगा ना तब बंदा अपॉइंट होएगा। इज दिस ओके? ठीक है, बहुत सोचना पड़ता है इसके लिए, तो अगर अब भी समझ में आया तो ठीक, नहीं तो वापस जाके इसको वापस देखो सो दैट तुम्हें ये समझ में आए, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइक दिस द वे आई जस्ट डिड, ओके। नेक्स्ट, दिस कंप्लीट्स 196, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं 197 की तरफ। 197 इज रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। इस सेक्शन में बहुत छोटा सा सेक्शन है, तुम चाहिए तो ये SFMCU, ICICI एंड FCC का लिस्ट है, एंड +3 हम याद रखते हैं एज 2016, 17, 18, जो कि ये रहे 16, 17, 18, ओके। नेक्स्ट,
अब ये है आपका 197, ठीक है। इसमें एक बार बस जाके देख लो ना कि कितने सबसेक्शंस हैं। अगर आपने बुक नहीं खोल रखी मैं दिखा देती हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो शेड्यूल 5 चल रहा है। ओके, डू यू सी दिस? एंड दिस इज सबसेक्शन 17 ना। बस इतने ही हैं, सिर्फ 17 सबसेक्शन। अब तक का सबसे बड़ा सेक्शन दैट वी हैव स्टार्टेड इज 149 व्हिच हैड 13। नाउ दिस इज 17। ओके, सिर्फ 17 सबसेक्शंस हैं। याद हो जाएंगे क्या? अरे मस्त हो जाएंगे, चिंता मत करो। इट्स वेरी इजी, बस ध्यान से सुनना, इट विल वर्क। क्योंकि लॉजिकल है ना, तो एक्सप्लेनेशन ऐसे लगता है कि अरे ये तो मेरे को मालूम है, ये तो मेरे को मालूम है। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स 197, बड़ा सेक्शन है, एक एक करके बात करते हैं। सो ओके, सो यूर ऑन टू दिस साइड 197 सबसेक्शन 1. ओके, सबसेक्शन 1 इज ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन मैक्सिमम की जो लिमिट्स है ना, दे आर सिंपली, just remember it is 1%, 3%, 5%, 10% and 11% ओवरऑल, इन सबको मिला के। ओके, सो अगर कंपनी में MD/WTD है तो ज़्यादा काम वो लोग करते होंगे, तो एट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स व्हेन देयर इज नो MD/WTD दे गेट 1%. बट अगर MD/WTD व्हेन देयर इज MD/WTD दे गेट 1%. बट व्हेन देयर इज नो MD/WTD तो सारा काम इन्हीं को करना पड़ता होगा, तो इनकी रेम्यूनरेशन बढ़ेगी। तो नॉन एग्जीक्यूटिव व्हेन देयर इज MD/WTD 1% लेते हैं, जब वो नहीं होंगे तो 3% लेते हैं। MD/WTD खुद अगर इकलौता होगा तो 5% लेगा, मोर देन 1 होंगे तो टोटल 10% लेंगे, जितने भी हों। एंड ओवरऑल 11 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अगर जा रहा है, सो ओवरऑल लिमिट 11% of net profits, and if you want to exceed that you need special resolution of the company in GM. okay, तो ओवरऑल को एक्सीड करने के लिए यू नीड SR, ओवरऑल 11 है। इंडिविजुअल्स को अगर इसको एक्सीड करना है, ओके, सो अगर इसको एक्सीड करना है, दिस पर्टिकुलर थिंग यू वांट टू एक्सीड दिस 11%, देन यू नीड SR. But if you want to exceed these individuals, you need OR of shareholders. Okay, this is what is written in this subsection 1. ठीक है, now coming to this, if the company is defaulted in payment of any bank dues, public वगैरह वगैरह वगैरह, PFI कोई भी डिफॉल्ट है तो ये पेमेंट नहीं होगा, ये अमेंडमेंट है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट 197 सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 1 was limits. सबसेक्शन 2 परसेंटेजेस नॉट टू इंक्लूड सिटिंग फीस। ये जो आपने परसेंटेजेस की बात की ना, विच वॉज 1-3, ये जो परसेंटेजेस हैं एक्सक्लूडिंग सिटिंग फीस है। सिटिंग फीस अलग से मिलती है सबसेक्शन 5 में। ओके, नेक्स्ट नो रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ इनएडिक्वेट और नो प्रॉफिट्स। ये एक मस्त रूल है, इन्होंने बोला है ऑल दिस इज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो आप ये परसेंटेज किसका निकालोगे? लॉस का। हायर द लॉस हायर द रेम्यूनरेशन, डजंट वर्क, राइट। सो इसलिए बस ये याद रखना कि दिस इज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट नहीं है तो रेम्यूनरेशन नहीं है, ऐसा सबसेक्शन 3 बोलता है। एंड ये सबसेक्शन 3 इज द ओनली ब्रिज टू गो अप टिल शेड्यूल 5। ओके, सो सबसेक्शन 3 ने बोला है इफ देयर इज नो प्रॉफिट तो यू विल गेट नो रेम्यूनरेशन। नो प्रॉफिट नो रेम्यूनरेशन, सिंपल फंड है। ओके, ये इतना सिंपल सा एक रूल है। लेकिन इफ़ यू वांट टू गिव तो तुम्हें शेड्यूल 5 के हिसाब से देना पड़ेगा, और यहीं से शेड्यूल 5 पार्ट 2 का रास्ता निकलता है। ठीक है, वील कम टू इट लेटर, उसको एंड में करेंगे, बट पहले ये समझ लो कि सबसेक्शन 3 ने बोला था शेड्यूल 5 जाना है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, सबसेक्शन 4। अगर यू आर पेइंग डायरेक्टर इन एनी अदर नेम, लाइक यू हैव गिवन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, बाकी वे सेइंग अरे वो अकाउंटेंट का भी काम करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, एवरीथिंग विल बी एडेड टू हिज सैलरी। ओके, बट इफ ही इज गिवन इट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड ही पोजेसेस रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस तो फिर वो ऐड नहीं होगा। सो इफ यू सी दैट रेम्यूनरेशन पेएबल टू डायरेक्टर शैल बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल एवरीथिंग पेड टू हिम, बट exception is the services are of professional nature and in the opinion of nomination remission committee he possesses the requisite qualification. ठीक है, अब 10th पास है और तुम बोलो वो टैक्स कंसल्टेंसी दे रहा है, डजंट वर्क। ओके, नेक्स्ट सबसेक्शन 5 पे आते हैं सिटिंग फीस। सिटिंग फीस डायरेक्टर्स को मिलती है। फर्स्ट रूल, मैक्सिमम अलाउड इज 1 लाख पर बोर्ड मीटिंग पर डायरेक्टर।
कम दे सकते हो बट ज़्यादा नहीं दे सकते. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट रूल इज, प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन हैव डिफरेंशियल रेट्स बट आईडी और वुमेन डायरेक्टर इनकी सिटिंग फीस कैन नॉट बी लेसर देन अदर डायरेक्टर्स. ओके, जो अदर डायरेक्टर्स की होगी उतनी ही आईडी, बिकॉज आईडी एंड वुमेन डायरेक्टर वी डोंट वांट, लॉ ने बोला है देने, तो हम उनको फीस नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, ये वो चीज़ होगी. तो हमने कहा फीस इक्वल दो, काम तुम अपने आप दो. ओके, बिकॉज एवरी अदर डायरेक्टर विल बी लाइक उनको भी उतनी मिलती है जितना हमें मिलती है, उनको कोई काम नहीं, काम दो. दैट इज वॉट वी वॉन्ट. ठीक है. सो फॉर आईडी एंड वुमेन डायरेक्टर सिटिंग फीस कैन नॉट बी लेस देन अदर डायरेक्टर्स. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. ठीक है. नॉट टॉकिंग अबाउट सबसेक्शन 6 मोड ऑफ पेमेंट. तुम चाहिए तो मंथली दो, तुम चाहिए तो क्वार्टरली दो, तुम चाहिए तो एनुअली दो. ठीक है. उसमें भी इफ यू वांट टू गिव एज अ परसेंटेज और यू गिव फिक्स्ड और यू गिव अ कॉम्बिनेशन. कुछ फिक्स्ड है 50,000 पर मंथ मिलेगा प्लस परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा. ओके, वॉट एवर यू लाइक, जब तक लिमिट्स में हो सब ठीक है. ओके. नेक्स्ट सबसेक्शन 7 रेम्युनरेशन टू आईडी ओमिट हो गया बिकॉज ये रिपीटेटिव था बिकॉज रेम्युनरेशन ऑफ आईडी हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं 149 में. इसमें फिर से पढ़ते तो डबल हो जाता, सो दे रिमूव्ड इट. ओके. ना कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये जो हम बार बार बोल रहे हैं 11% वगैरह ऑफ नेट प्रॉफिट, दैट नेट प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 विच इज द नेक्स्ट वन. ठीक है. लेकिन वो लिखा है 197 सबसेक्शन 8 में, एंड इट्स इजी टू रिमेंबर सबसेक्शन 8 इज 198. ठीक है. सो further provides the net profit will be calculated as per 198. okay, 198 as such कुछ है नहीं because 198 more of calculation of profits FR में आता है, लॉ में नहीं, बट स्टिल हमने उसको ध्यान में रखने के लिए just we've kept it there. नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो अमेंडमेंट सबसेक्शन 9 सी. पहले से होता था अगर डायरेक्टर इज रिसीविंग एक्सेस रेम्यूनरेशन, जो अलाउड है उससे ज़्यादा लें तो वो SR OR सब पास करना चाहिए, बट विदाउट दैट इफ यू रिसीव एक्सेस ना तो इट इज़ कंसिडर्ड एज रिकवरेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड जब तक रिकवर नहीं होगी ना तब तक वो आपके बुक्स में असेट दिखनी चाहिए कंपनी के. ओके, सो दैट ऑडिटर उसको वेरीफाई कर सके कि पैसे आए या नहीं. ये नॉर्मल रूल है. ठीक है. अब पहले ये था कि ये था सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10 ने बोला था इफ़ यू वांट टू वेव इट ऑफ तो तुम्हें सही चाहिए था CG अप्रूवल, क्योंकि पहले नहीं लिया ना. इफ यू अंडरस्टैंड, अब तो CG होता ही नहीं है. ठीक है. सो इफ यू वांट टू वेव इट ऑफ यहाँ होगा SR ऑफ शेयर होल्डर्स. ओके, लेकिन अब एक रूल जो बढ़ गया है इज दिस शुड बी रिकवर्ड विद इन 2 years. And if you want to waive it off, you'll have to do it within 2 years. बस. Okay, so come back here. Director receives remuneration exceeding limits without approval. यहाँ पे CG नहीं होएगा, approval होएगा. ठीक है, क्योंकि CG अभी amend हुआ. If any director draws in excess without approval required, he shall refund within 2 years or the period allowed by the company, whichever is lower. And until it is refunded, it will be held in the trust of company. मतलब on behalf of company वो company का asset रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट वेवर ऑफ एक्सेस, दिस इज सबसेक्शन 10. अगर एक्सेस लिया है और उसे वेव करना है तो वेवर के लिए तुम्हें SR ऑफ शेयर होल्डर्स लगेगा, SR. ओके. एंड लेट मी टेल यू दिस, आई डोंट नो तुम्हें समझेगा कि नहीं, बट शायद ये SR अगर यहाँ नहीं भी लिखा होता तो भी हम SR तो पास करते ही थे. CG अप्रूवल एक्स्ट्रा था. हम पहले SR इसलिए पास कर रहे थे क्योंकि सेक्शन 180 है. 180 याद है, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड. उसमें SR पास करके ही 4 पावर्स एक्सरसाइज होते हैं, जो हमने याद रखा था. बोर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेल आर रेमिशन ऑफ एनी अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम अ डायरेक्टर. उसके लिए वैसे भी वहाँ SR था तो वहाँ वाला SR करते थे हम, और फिर यहाँ वाला हम CG अप्रूवल करते थे. अब CG अप्रूवल नहीं है, वही एक ही SR है. इज दिस ओके? नेक्स्ट अगेन अगर डिफॉल्ट है तो फिर ये नहीं होएगा. ओके. नेक्स्ट सबसेक्शन 11. मेरे को एक बात बताओ, किसी भी डायरेक्टर की रेम्युनरेशन कब बढ़ाई जाती है? जब वो प्रॉफिट करा के देगा या जब वो लॉस करा के देगा? प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट करा के देगा. अब तुम सोच के देखो, कोई भी कंपनी डायरेक्टर की रेम्युनरेशन उस साल में क्यों बढ़ाएगा व्हेन यू मेड लॉसेस और देयर आर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स? आई टेल यू क्यों बढ़ाएंगे. नॉर्मली नहीं बढ़ाएंगे बट फिर भी बढ़ा रहे हैं ना, तो इट इज टू कंपनसेट दिस ईयर्स लॉस इन द फ्यूचर ईयर्स. कि इस साल नहीं दे पा रहे ना रेम्युनरेशन, अगले साल से डबल ले लो तो सेट ऑफ हो जाएगा. सो दे सेड एक सेकेंड, इस साल में अगर किसी की रेम्युनरेशन बढ़ाई इट विल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स. ठीक है. एक सेकेंड. अनलेस पहले ऐसे था इट इज एज पर शेड्यूल 5 और अनलेस अप्रूव्ड बाय CG. ठीक है. अब उन्होंने बोल दिया CG तो है नहीं, सो अनलेस इट इज एज पर शेड्यूल 5. ओके. तो शेड्यूल 5 में जितना अलाउड है, फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 5 उस पर्टिकुलर केस में शेड्यूल 5 की मिनिमम लिमिट 60 लाख है पर एनम पर डायरेक्टर. सो लेट्स से 60 लाख अलाउड था, हमने उसको 40 फिक्स किया था. एंड इस ईयर इन केस ऑफ लॉसेज वी आर मेकिंग इट 50. दिस इज दैट्स अलाउड, क्योंकि वो तो खैर शेड्यूल 5 60 दे रहा है यार, दैट्स ओके. बट इफ यू वांट टू मेक इट 60 के बजाय 70 तो फिर तुम्हें नॉट अलाउड है, सिर्फ शेड्यूल 5 जितना अलाउड है. ओके. सो इन केस ऑफ नो प्रॉफिट्स एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन
शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट इज एज पर शेड्यूल 5. पहले यहाँ सीजी अप्रूवल भी था, अब वो नहीं रहा. ओके, नेक्स्ट, disclosure by a listed company. This is only for a listed company. Listed company has to give certain disclosures in its board report. वो disclosures क्या क्या है? सबसे पहले ना there is a ratio. तुम्हें mean, median, mode पता है? Yeah, mean is average, median is the centermost number, mode is highest frequency. Okay, median मतलब centermost number. All that you're supposed to do is you're supposed to give a ratio. ठीक है? Each director's remuneration is to the median employee's remuneration. क्या होता है बताए? When you write a director's remuneration 1 crore, listed company 1 crore remuneration, किसी it does not catch anybody's eye. It's like हाँ नॉर्मल है, मिलता है, इतना तो देते ही हो तुम. ठीक है? Whereas if you understand मीडियन, जब आप उसको कंपेयर करते हो मीडियन एम्प्लॉय से, तो वो जो रेशियो होता है ना दैट कैचेस द आइज. ओहो, मीडियन एम्प्लॉय का 10 टाइम्स होता है वो डायरेक्टर. नाउ इट इज लाइक भाई ऐसा क्या काम कर रहे हो जो इतने पैसे ले रहे हो. ओके, सो दैट इज व्हाट यू वांट, द रेशियो ऑफ ईच डायरेक्टर टू द मीडियन एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन. हर डायरेक्टर इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा. ठीक है? देन सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू नो इज इफ देयर इज एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो उसकी एग्रीगेट होल ईयर की रेम्यूनरेशन डज नॉट एक्सीड 1 crore 8 lakh rupees. Okay, I don't think this should be 1 crore 8 lakh. Actually 8,50,000 है. So 8,50,000 पर मंथ होता है इसका. ठीक है, इसको इंटू 12 करोगे, सो आई थिंक दिस कम्स टू 1 crore 2 lakh. ठीक है, तो जस्ट इन केस, वैसे तो आई एम श्योर आपकी बुक में ये करेक्शन हो गया होगा. सो दिस इज 1 crore 2 lakh. सो कमिंग बैक, अगर उसकी एनुअल रेम्यूनरेशन इन द होल ईयर एक्सीड्स 1 crore 2 lakh rupees, अगर वो पूरे साल था तो, बट वॉट इफ वो 11 महीने था, 11 महीने 28 दिन, तो हमने कहा कोई बात नहीं, मंथली रेम्यूनरेशन एक्सीड्स 8,50,000. सो दीज आर टू नंबर्स. इफ यू आस्क मी व्हाट इज ईजियर टू रिमेंबर, 8,50,000 इज ईजियर टू रिमेंबर. 8,50,000 into 12 इज 1 crore 2 lakh. ठीक है, तो अगर साल भर काम किया है तो इज रेम्यूनरेशन एक्सीड्स 1 crore 2 lakh, तो उसका डिस्क्लोजर चाहिए बोर्ड रिपोर्ट में. पूरे साल काम नहीं किया है तो मंथली रेम्यूनरेशन 8,50,000 से ज़्यादा थी फॉर वॉट एवर टाइम इज वर्कड. ठीक है, तो उसका भी डिस्क्लोजर चाहिए अलग से बोर्ड रिपोर्ट में. भाई कौन है ये लोग? दिस इज मंथली 8,50,000 गाइज. फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एवरेज स्टूडेंट, नॉट अ रैंकर, उसकी शायद फर्स्ट ईयर की सैलरी भी इससे कम होती है एनुअल, इसकी मंथली है. मेकिंग सेंस? ठीक है, नेक्स्ट, इफ इज एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर, उसकी जो रेम्यूनरेशन थी, एक तो ये 2 लिमिट्स तो हो गई, बट मैं क्या बोल रही हूँ, नॉट दीज लिमिट्स, उसकी रेम्यूनरेशन वॉज मोर देन MDWTD की रेम्यूनरेशन. ही इज एन एम्प्लॉई बट MD से ज़्यादा कमा रहा है. भाई ऐसा कौन सा एम्प्लॉई है ये? मस्ट बी सम डीम डायरेक्टर टाइप्स. ठीक है, जो वो पोस्ट नहीं लेना चाहते बट पैसा चाहिए. ओके, सो वी हैव सेड इफ ही इज अर्निंग हिज रेम्यूनरेशन इज मोर देन दैट ड्रॉन बाय MDWTD मैनेजर एंड उसके पास वोटिंग पावर है नॉट लेस देन 2%, तो फिर ये कोई इंपॉर्टेंट इंसान है, हमें इसका अलग से डिस्क्लोजर चाहिए. ओके, सो दीज 3 डिस्क्लोजर्स प्लस दिस 1 रेशियो डिस्क्लोजर, 4 डिस्क्लोजर चाहिए ओनली बाय अ लिस्टेड कंपनी. मेकिंग सेंस? ओके, नेक्स्ट, talking about 197 subsection 13, default insurance of KMP. This is something very important. This is not life insurance. ये की मैनेजरियल पर्सनल का की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ये उसके डिफॉल्ट का इंश्योरेंस है. यू नो, नए एक्ट में हर चीज़ में, नए एक्ट में एवरीथिंग यू पनिश द OID. ठीक है, एंड इन द OID समबडी हु विल ऑलवेज से, कह रहे मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मेरे को बिना बात क्यों पनिश कर रहे हो. सो इट्स लाइक हाउ डू आई इंश्योर कि उसकी गलती थी या नहीं थी, और कल को अगर उसकी गलती नहीं होकर वो पनिश हो गया तो ऐसे तो नोबडी वुड वांट टू बिकम अ डायरेक्टर ओनली. ठीक है, सो कंपनीज ने क्या दिमाग लगाया पता है? कंपनीज ने OID को बोला यू डोंट वरी, हम ना हर डायरेक्टर के डिफॉल्ट का इंश्योरेंस निकालेंगे. ओके, वी विल लाइक ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा डिफॉल्ट का इंश्योरेंस मतलब अगर आपसे कल को कोई गलती हो गई ना तो द पेनल्टी दैट यू विल पे, इंश्योरेंस कंपनी विल रिएम्बर्स यू. कंपनीज एक्ट ने बोला बड़े स्मार्ट निकले तो, बिकॉज आई वॉन्ट पनिश द कल्प्रिट ना, क्योंकि जिसकी गलती उसको पनिश करोगे तो वो अगली बार वो गलती नहीं करेगा. बट अगर तुम उसे रिएम्बर्स कर दोगे तो उसको अपनी गलती रियलाइज कैसे होगी? कंपनीज एक्ट ने बोला मेरे को कोई चिंता की जरूरत नहीं. जस्ट रिमेंबर, अगर सबसेक्शन 13 यहाँ नहीं होता ना तो ये जो कंपनी का पूरा प्लान था ना, कंपनी का डिफॉल्ट इंश्योरेंस निकालेंगे, सब वेस्ट हो जाता. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज एनीथिंग सबसेक्शन 4 में लिखा है, डायरेक्टर ने कोई और सर्विस दी, उसका आपने पेमेंट किया, या फिर एनीथिंग पेड टू द डायरेक्टर और ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इज एडेड टू हिज रेम्यूनरेशन. तो जो कंपनी इंश्योरेंस निकालेगी तो प्रीमियम भरना पड़ेगा. ये प्रीमियम किसके बिहाफ पे भर रहे हो? डायरेक्टर के. तो एक्चुअली ना सबसेक्शन 4 इस प्रीमियम को उसकी सैलरी में ऐड करा देगा.
कंपनी एक्ट चुपचाप भी बैठेगा ना यहाँ पे तो भी तुम्हारा पूरा प्लान तहस नहस हो जाएगा. एंड जस्ट टू इंश्योर दैट योर प्लान इज नॉट स्पॉइल्ड, कंपनीज एक्ट केम अप विद दिस सबसेक्शन 13. जिससे अगर मैं भी चुप रहा ना तो इनका प्लान वेस्ट हो जाएगा. तो उसने आके बोला रुको, आई विल सपोर्ट यू इन दिस. सुनो, तुम इंश्योरेंस प्रीमियम जो भर रहे हो तुम भरते रहो, आई विल नॉट एड इट टू हिज रेम्यूनरेशन. आई विल वेट फॉर द डे ऑफ क्लेम. The day a default will happen and there'll be a claim. At that moment will we check was it his mistake or no. So if it was not his mistake, then it's okay. This premium that you paid on his behalf will not be added to his remuneration. But if it is proved that it was his mistake, then this premium will be added to his remuneration considering as his remuneration. And if you're thinking, ma'am premium क्यों add कर रहे, claim add करो ना. Only what my company paid on my behalf can be added to the remuneration. Insurance company की director नहीं थी मैं इस company की director. Okay, now if you read this, where any insurance is taken for indemnifying them against the liability for which they may be guilty in relation, the premium paid will not be treated as a part, but if the person is proved guilty, it will be treated as a part. Make sense? बहुत दिमाग लगाते हैं लॉ बनाने वाले. Subsection 14, you are allowed to receive remuneration from holding and subsidiary also, लेकिन within limit. मतलब मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, इसने मेरे को थोड़े कम पैसे दिए, बचे हुए पैसे उसने होल्डिंग से दिलवाए, विद इन लिमिट्स अलाउड, यू नॉट डिस्क्वालिफाइड. दैट इज सबसेक्शन 14. 15 इज पेनल्टी विच इज फ्लैट 1 लाख फॉर द इंडिविजुअल एंड फ्लैट 5 लाख फॉर द कंपनी. ओके, पहले 1 लाख टू 5 लाख था, 1 लाख इसका हो गया, 5 लाख इसका हो गया. नेक्स्ट सबसेक्शन 16, ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 दैट वेदर उन्होंने शेड्यूल 5 की सारी कंडीशंस मानी या नहीं मानी. शेड्यूल 5 रेस कंपनी ये सब 197. एंड प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, अगर ये नहीं भी लिखा होता ना ऑडिटर फिर भी रिपोर्ट कर ही रहा था, क्योंकि फिर कारो 143 में ही आता. कारो में ऑलरेडी क्लॉज है इसके लिए. सो इट्स जस्ट दैट यहाँ एक डबल कवर अप हो गया. यहाँ भी लिख दिया ऑडिटर तू रिपोर्ट कर देना प्लीज, क्योंकि वहाँ तो तू कर ही रहा है. ओके, एंड लास्टली सबसेक्शन 17, यू नो पहले बिफोर दीज अमेंडमेंट्स केम 16 and 17 सबसेक्शन था ही नहीं, देयर वर ओनली 15. Now, after this amendment came, CG approval was taken away from everywhere. Now there are people who have already applied for CG approval, अभी तक approval आया नहीं है. ठीक है, now it's like उनका क्या करें? They said कुछ मत करो, उन लोगों को बोलो 1 साल में वो एप्लीकेशन तो भूल जाओ, विद इन 1 ईयर जो अप्रूवल चाहिए यहाँ पे SR OR वो सब लेके खत्म करो. CG इज नो मोर देयर, वो शटर बंद हो गया, काउंटर क्लोज्ड फॉर एवर. सो ऐसा नहीं अभी बाद में खुलेगा गया काउंटर, कुछ नहीं खुलेगा, जाके दूसरा वाला सिस्टम फॉलो करो विद इन 1 ईयर. Okay, so on and from commencement of this rules, any application made to central government which is pending shall abate. The company shall within 1 year obtain approval in accordance with this amended provisions. ORSR जो भी जरूरत हो यहाँ पे. Okay, this is 197. अब तुम्हें पता है 197 ने शेड्यूल 5 का रास्ता निकाला था. Okay, अब हमें जाना है शेड्यूल 5. शेड्यूल 5 एज आई टोल्ड यू, शेड्यूल 5 कौन सा पार्ट होगा अब ये? Part 2. How many sections does it have? It has 5 sections guys. अब ये ना ध्यान से सुनना, बड़ा important है ये. Okay, 5 subsections. Sections. Section 1, Section 2, Section 3, Section 4 and of course Section 5. Okay, समझ लेना, this is going to be very important. Okay, Section 1 is for companies having adequate profits. Section 2 is for companies having inadequate profits. Section 3 is again for companies having inadequate profits. But only for special circumstance वाले लोग. Section 4 is a calculation. Okay, and Section 5 is one condition only. ये हैं 5 सेक्शन. ठीक है, इफ यू आस्क मी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैम? सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट फिर भी सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं? ये सबसे ज्यादा. बाकी सब नहीं पूछते, ऑफ कोर्स पूछते हैं, बिकॉज ये पढ़ने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा. सो दे आर ऑल रिलेटेड. ओके, सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. सो मूविंग अहेड, हम ना एक एक करके बात करें. नाउ माई फर्स्ट डाउट इज, आई
थॉट, आई ऑलवेज थॉट, और मे बी यू ऑल्सो थॉट, कि शेड्यूल 5 तो सिर्फ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स वालों के लिए होता है ना, लॉस वालों के लिए. ये एडिक्वेट प्रॉफिट वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? सी, इट्स नोवेयर रिटन दैट शेड्यूल 5 इज ओनली फॉर लॉस मेकिंग कंपनीज. ऐसे तो शेड्यूल 5 बदनाम हो जाएगा. ओके तो किसी ने शेड्यूल 5 में अगर रेम्युनरेशन लिया तो हो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसा हो जाए. ठीक है. सो शेड्यूल 5 इज नॉट जस्ट फॉर लॉस मेकिंग पीपल, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ध्यान से समझना. सो शेड्यूल 5 इज फॉर प्रॉफिट एज वेल एज लॉस. हमने उनको मना नहीं किया है, बट ऑनेस्टली अगर तुम समझो जिसके पास प्रॉफिट है उसको 197 में लेना चाहिए ना. बट फिर भी वो लोग आ जाते हैं मुंह उठा के कि शेड्यूल 5 हमको चाहिए. आई टेल यू वो क्यों आ रहे हैं शेड्यूल 5 के पास. बिकॉज वहाँ पे remuneration 197 में is a percentage of profit. So at times if my profit is too low, the percentage will also come low. Whereas schedule 5, the minimum that they are allowing, like they have the limits, right? Maximum itna you can give, maximum itna you can give. Their first limit is 60 lakh per annum per director. 60 lakh. Even for a loss making sick company. जिसके पास है नहीं 60 लाख बट उसको अलाउड है 60 लाख. अब तुम दोगे कहाँ से वो तुम देखो. So 60 lakh is the minimum limit. So you know those companies which are making profit, they find this quite lucrative कि चलना वहाँ चलते हैं, वहाँ 60 लाख देंगे, यहाँ क्या मिल रहा है. For example, I make 1 crore का profit also, 11% ही तो allowed है, which is 11 lakh सबको मिला के. So if you understand, even if I make 10 crores का profit, 1 crore मतलब you getting it, it's going to be very less because हम सब में बढ़ जाएगा. Whereas यहाँ तो per director 60 लाख मिल रहा है, यहीं चलते हैं. So इन्होंने क्या किया, जस्ट अंडरस्टैंड, इमेजिन दिस सिनेरियो, अ कंपनी विच हैज मेड प्रॉफिट्स, दे केम टू शेड्यूल 5, दे नॉक द डोर, शेड्यूल 5 सुनो ना. शेड्यूल 5 ने बोला हाँ बोलो. तो शेड्यूल 5 ने ना सबसे पहले दरवाज़ा खोला, बोला यार टेल मी व्हाट डू यू वांट. तो उन्होंने यहाँ पे आके ना नॉक किया, शेड्यूल 5 दरवाज़ा खोलो ना. शेड्यूल 5 ने बोला हाँ बोलो क्या चाहिए. बोले हमको ना रेम्युनरेशन चाहिए. शेड्यूल 5 ने बोला ओके एक काम करो, पार्ट 2 वाला डोर दिख रहा है, पार्ट 2 जाओ, उधर जाओ, पार्ट 2 में जाओ आप, बाकी दोनों डोर्स में नहीं जाना. दे सेड ओके. वो पार्ट 2 में आए. पार्ट 2 ने बोला क्या चाहिए. बोला रेम्युनरेशन चाहिए. हमने कहा हाँ बट आई यू अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और लॉस मेकिंग. दे सेड वी आर प्रॉफिट मेकिंग. सो एक्चुअली ना द पर्सन सिटिंग हियर उसको बहुत गुस्सा है. उसने बोला जब तुम प्रॉफिट मेकिंग तो इधर क्यों है, बट ऐसा बोल नहीं सकते ना. उसने बोला एक काम करो तुम जाओ, वो जो पहला दरवाजा दिख रहा है उस तरफ सेक्शन 1 का, उसके अंदर जाओ, गो नॉक दैट डोर. सो यू गो अंडर सेक्शन 1. ठीक है, सेक्शन 1 का तुमने दरवाजा खटखटाया, बोला हेलो सुनो ना हमें रेम्युनरेशन चाहिए. सेक्शन 1 ने बोला अच्छा तुम प्रॉफिट मेकिंग हो. बोले हाँ हमारे पास प्रॉफिट है. तो उन्होंने बोला जाओ दरवाज़ा खोलो, अंदर जाओ. अंदर लिखा है अंदर एक और दरवाजा है जो खुलता है 197 में. बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड यू सपोज टू फॉलो 197 ना, तो दिस इज द स्वीटेस्ट वे टू से गेट लॉस्ट. ओके तो अब अगर वो तुमसे पूछे कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी वांट्स टू पे अंडर शेड्यूल 5, यू शुड नॉट बी सेइंग नो नॉट अलाउड. यू सपोज टू से या शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 1 फॉलो 197. इज दिस ओके. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज समथिंग दैट दे आस्क अ लॉट, कंपनी हैविंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और मे बी नो प्रॉफिट्स. ओके इनके लिए ना यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं गाइस. एक्चुअली इन्हीं के लिए शेड्यूल 5 इन अ वे. यहाँ पे ना 2 ऑप्शंस है, ए बी. ए में यू विल गिव टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड बी में यू विल ओनली गिव टू अ प्रोफेशनल डायरेक्टर. ओके हु इज वर्किंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी. बेसिकली जैसे एडिशनल डायरेक्टर होता है, प्रोफेशनल होता है वो. ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, दिस इज डिफरेंट. ओके ऑल डायरेक्टर्स में ना उन्होंने बोला सी यू हैव ऑलरेडी मेड लॉस, हाउ डू आई डिसाइड कि कौन सी कंपनी कितना देगी, बिकॉज लॉस के बेसिस पे थोड़ी दोगे, हायर द लॉस हायर द रेम्युनरेशन. ओके सो वी सेड हाउ डू आई फाइंड आउट, लाइक तुम्हारे नेटवर्थ से एनालाइज करूँ तो नेटवर्थ इज नॉट राइट टू एनालाइज हाउ मच यू शुड पे. नेटवर्थ तो मेरा सब कुछ है. सो दे सेड अच्छा ओके, दे केम अप विद अ फंडा ऑफ इफेक्टिव कैपिटल. ओके दे सेड इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करो इनका, एंड दे केप्ट स्लैब्स पर एनम पर डायरेक्टर, मैक्सिमम कितना अलाउड होगा. ओके दे सेड स्लैब्स है हमारे पास, तुम अपना इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कर लो और आके देख लो तुम जिस स्लैब में आते होगे उतना रेम्युनरेशन अलाउड है. लाइक अच्छा एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो दे सेड कैलकुलेट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक काम करो इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन, दिस इज इफेक्टिव कैपिटल. सो सेक्शन 4 में लिखा है. ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन इज एड 5 थिंग्स, वी कॉल इट एड प्लीज डॉक्टर लेस पिया
एट प्लीज डॉक्टर लेस पिया. सो एज सुन एज यू डू एट प्लीज डॉक्टर लेस पिया, जो आंसर आएगा वो इफेक्टिव कैपिटल होगा. तो मैंने कहा अच्छा ये कौन है एट प्लीज डॉक्टर लेस पिया. तो दे सेड एट प्लीज डॉक्टर लेस पिया इज पेड अप शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स विच इज रीपेबल आफ्टर 1 year. आई वोंट राइट इट, अदरवाइज तुम्हें अगली बार याद इजीली आएगा. यहाँ फोकस करो. पेड अप शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 year, रिजर्व्स इन सरप्लस बट नॉट रिवैल्यूएशन, क्योंकि वो तो ऐवे ही होता है. पी माइनस करोगे इसमें से, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आई इन्वेस्टमेंट्स एंड ए अक्यूमुलेटेड लॉसेस. ये जो सब एड माइनस करके आएगा, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपिटल. आई वाज लाइक ओह दिस इज इफेक्टिव कैपिटल. दे सेड या, अब एक काम करो, इसको उठा के लाओ यहाँ पे हम स्लैब में चेक करेंगे हमारा इफेक्टिव कैपिटल कितना है, उतना अलाउड होगा. We said okay. Now what are the slabs? They've said negative. Can effective capital be negative? Of course it can be negative. So negative 2 less than 5 crores. 5 crores comes in the second slab. You're allowed 60 lakh per annum per director. 5 crores to less than 100 crores. You're allowed 84 lakh. 100 to less than 250 crores. You're allowed 120 lakh. And 250 and above, you're again allowed 120 plus 0.01% of excess effective capital above 250. This is maximum allowed. दे कितना पाओगे वो आपके ऊपर है, आपके पास होगा उतना ही तो दोगे. Is this okay? So this is what you're allowed. But if you want to pay more than this, if you're like नहीं मेरे को इससे ज़्यादा देने का है तो anything more than limits, so they said okay जा. पहले से होता था डबल देने के लिए एसआर चाहिए, उससे ज़्यादा देने के लिए सीजी, अब हर जगह एसआर है. So if you understand anything about this, if you want to pay, you'll have to take SR of shareholders, and to pay this within limits, you'll have to take OR of shareholders. Is this okay? SR and OR make sense? तो ये OR SR एक ही है. यहाँ ये वाला अप्रूवल लगेगा, यहाँ SR लगेगा इससे ज़्यादा देने के लिए, इतना देने के लिए OR, इससे ज़्यादा देने के लिए SR. ओके, नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स अप इट्स ओके चलो ये तो मेरे को समझा. प्रोफेशनल कैपेसिटी डायरेक्टर पे आ जाए. सेड या लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेशनल कैपेसिटी डायरेक्टर नाउ. ठीक है, सो नाउ व्हेन अ डायरेक्टर इज वर्किंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, व्हाट इज दैट? दे सेड 4 कंडीशन है, फिर उसको जितना देना है दो. यू आर अलाउड टू गिव एज मच एज यू वांट, जस्ट पास एन SR एंड गिव वॉट एवर यू वांट टू गिव. ओके, कितना भी अलाउड हो जाएगा SR पास करते. आई सेड ओके, क्या 4 कंडीशन है? जैसे सबसे पहले ही शुड बी वर्किंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी. एंड प्लीज याद रखना, किसी को प्रोफेशनल बोलने के लिए उसके पास होनी चाहिए डिग्री. सी एक्सपीरियंस से तुम प्रोफेशनल नहीं बोले जाते, डिग्री से प्रोफेशनल बोले जाते हो. तो इसका 4th कंडीशन होएगा, तो उसके पास. मेरे को एक बात बताओ, व्हाट वाज योर फर्स्ट डिग्री ऑफ लाइफ? 10th में तुमको डिग्री मिला, 12th में डिग्री मिला, पासिंग सर्टिफिकेट मिले, डिग्री मिला था, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिग्री. सो इट शुड बी किसी के भी लाइफ का फर्स्ट. तुम्हारा बीकॉम होगा मे बी, बट BSc BA सब एनी बैचलर इज अ डिग्री. ठीक है, सो ही शुड बी मिनिमम ग्रेजुएट, तभी प्रोफेशनल बोले जाओगे. ओके, सेकेंड कंडीशन इज ही शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ कंपनी. ओके, थर्ड इज he should have no relation with the director promoters of the company. Okay, and no interest in capital का एक exception है, that no interest in capital of the company में they have clearly specified that up to 0.5%. Normally allowed तो 1 रुपया भी नहीं है, but 0.5% in these 2 names will be allowed. That is either ESOP और क्वालिफिकेशन शेयर्स के नाम पे 0.5% तक होएगा तो चलेगा. 0.5 हाँ, 5 नहीं है, ये बहुत चिंदी है, याद रखना. हर जगह वी स्टार्टेड 2% वोटिंग पावर, यहाँ पे वी आर अलाउिंग हिम 0.5, उसका भी 25%. 2% से भी बहुत कम है. ओके, जस्ट रिमेंबर इट, अदरवाइज तुम 5% लिख के आओगे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, 0.5% तक अलाउड है. ठीक है, दिस इज A एंड B मिला के जो बना ना. इफ यू सी, हम चल रहे थे सेक्शन 2 में. जस्ट फोकस, जस्ट जूम इन एंड अंडरस्टैंड. We were talking about this section 2, okay, जिसमें we had this inadequate profits,
उसके बाद हम गए थे ए बी में, ओके, फिर हमने ए पढ़ा, फिर हमने बी पढ़ा, ए बी ORSR पढ़े. अब मैं आपको बोल रही हूँ whether you want to do A or you want to do B, it does not matter which one are you doing, but whether you want to do A or you want to do B, तो मेरा 4 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी. 4 एडिशनल कंडीशंस, ठीक है. एंड दोज 4 एडिशनल कंडीशंस आर, सी दिस, कैन यू सी दिस, कंडीशंस फॉर पेमेंट अंडर ए और बी. 4 कंडीशन है. सबसे पहले हमें चाहिए अप्रूवल नॉमिनेशन रेमिशन कमेटी का एंड बोर्ड का, ठीक है. सो पेमेंट ऑफ रेमिशन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड एंड नॉर्मली कैसे होता है, जिसकी नॉमिनेशन रेमिशन कमेटी नहीं होती दे पास बोर्ड, राइट. यू हैव टू पास बोथ नॉमिनेशन रेमिशन कमेटी एंड बोर्ड, बट एनआरसी इज इफ एनी. नहीं हुआ तो फिर नहीं, बट बोर्ड तो हमेशा है. अगर एनआरसी हुआ तो दो अप्रूवल हो जाएंगे, ठीक है. फर्स्ट चीज, सो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ओवर हियर इज अप्रूवल ऑफ एनआरसी एंड बोर्ड, ओके. सेकेंड कंडीशन हियर द कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट. वही जो हर जगह आप डिफॉल्ट पढ़ते आ रहे हो, सो वही वाला, देयर शुड बी नो डिफॉल्ट in repayment to PFIs and banks and etc. Okay, so no default. Third condition, ये जो ORSR अपने पास किया ना, कौन से ORSR, can you see that highlighted part, ORSR, yeah, if you can see that, जिस तरह से हाईलाइट हुआ है ना, दिखेगा ही नहीं. Anyways, if you can see that ये जो ORSR है ना, इनकी वैलिडिटी है गाइस, and they are valid for a period of 3 years maximum. Okay, this is the third condition. And fourth condition, इस मीटिंग को बुलाने के लिए देना पड़ेगा स्पेशल नोटिस विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज टू क्यों, आखिर क्यों हम उनको शेड्यूल 5 में रेमिशन दे भी रहे हैं, और अगर SR पास कर रहे हैं तो क्यों ही कर रहे हैं, OR में भी देना पड़ेगा. ओके, कि वाई मत दो ना, 197 ने बोला है मत दो, बट देना पड़ेगा, तो क्यों दे रहे वो बताना पड़ेगा. Is this okay? Yeah, does that make sense? Okay. Now, just understand this. ये 4 कंडीशन मिला के जो हुआ है ना, ये अभी आपका सेक्शन 2 है. सबसे बड़ा यही है, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है. ओके, सो मूविंग अहेड टू नाउ सेक्शन 3. अगर तुम देखो तो अपना सेक्शन 1 हमें पता है, सेक्शन 1 हमें पता है, सेक्शन 2 हमारा हो ही चुका है. सेक्शन 4 इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन था. अब बचा 5 and 3, ठीक है. तो पहले ना 3 सुन लो, 5 तो एक कंडीशन है बस. ओके, 3 थोड़ा बड़ा है, इसलिए ध्यान से सुनना. 3 में ना इट इज़ लाइक देर आर 3 कंडीशंस गाइस. स्पेशल सर्कमस्टेंस है ना, तो 3 सर्कमस्टेंस है जिसमें यू कैन पे इवन मोर देन इफेक्टिव कैपिटल के जो लिमिट्स थे ना, उससे भी ज़्यादा दे सकते हो, बिना SR के OR से दे सकते हो. ओके, ये 3 टाइप के केसेस हैं. पहला, अदर कंपनी पेज. नाउ व्हाट डज दिस मीन, देयर आर मेनी पीपल हु डू दिस. पता है 60 लाख अगर मेरे को अलाउड है, आई विल गिव 60 एंड बाकी मेरे को देने 80 थे, ठीक है, या 90 थे, SR पास नहीं हो रहा था, तो व्हाट आई डिड वाज एक्स्ट्रा जो 30 दिलवा रही हूँ ना, वो मैं किसी और कंपनी से दिलवा रही हूँ. इट कुड बी माई होल्डिंग सब्सिडरी, इट कुड बी समबडी एल्स ऑल्सो. यहाँ सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी लिखा ना, तो पब्लिक अनरिलेटेड कंपनी से दिलवाएगी. सो वी सेड एनी अदर कंपनी पेज. तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करो और दे दो. और वो कंडीशन इतनी मस्त है, पीपल वर ऑलरेडी डूइंग दिस, बट ये कंडीशन के बाद नहीं करेंगे. आई टेल यू व्हाई. सबसे पहले उन्होंने बोला दैट द अदर एक्सेस पार्ट हैज टू बी पेड बाय अदर कंपनी. सेकेंड, द अदर कंपनी शुड ईदर बी अ फॉरेन कंपनी और अ कंपनी विच हैज पास्ड OR ऑफ शेयर होल्डर्स. मतलब वो दूसरा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये बोलेगी कि हमने अपने डायरेक्टर्स को तो रेमिशन दे लिया, बट वो दूसरी कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स ने लॉस किया है, उनको पैसे देने हैं और लिमिट से ज़्यादा देने हैं, उनके शेयर होल्डर्स हाँ बोल नहीं रहे, तो अपन दे दे क्या. यू थिंक दिल से यस, बट कंडीशन है, पॉसिबिलिटी तो दिखा दे कम से कम, सो दैट कोई ज्वाइन करे. थर्ड वाला, द अदर कंपनी हैज़ टू ट्रीट दिस पेमेंट, जो पेमेंट वो हमारे डायरेक्टर को दे रहे हैं, एज डायरेक्टर्स रेमिशन इन इट्स बुक्स. मतलब अब तक वो कुछ और दिखा रहे होंगे, अब डायरेक्टर्स रेमिशन दिखाओ. एंड बेस्ट, दिस पेमेंट प्लस रेमिनेशन मेड टू ओन डायरेक्टर्स शुड नॉट एक्सीड लिमिट्स ऑफ 197. मतलब अपने डायरेक्टर्स की जेब काट के तुम इनको पे कर रहे हो तो कर दो. डायरेक्टर्स मान जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं मानेंगे.
कुछ भी बातें हो रही हैं यहाँ पे, ऐसा सब कोई नहीं मानने वाला है. ओके, सो फॉर नाउ कमिंग बैक दिस पेमेंट. सो दिस इज 4 कंडीशंस. ये सेटिस्फाई करोगे तो आप वो जो लिमिट है उससे ज़्यादा दे पा रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट वाला इज न्यू कंपनी, सिक कंपनी एंड कंपनी whose scheme has been approved under IBC. Okay, new company, sick company and IBC. sick company मतलब sick eroding net worth. new company मतलब नई नवेली. एंड IBC वाली इफ यू अंडरस्टैंड, ये तीनों कंपनी का प्रॉब्लम ये है, either their name is gone or their fame is gone or their money is gone. ऐसी कंपनी में कोई डायरेक्टर बनना चाहता नहीं. मेरे को अगर ऑफर आएगा नई कंपनी एंड ओल्ड कंपनी, आई वुड प्रेफर एन ओल्ड कंपनी ना, बिकॉज उसका प्रॉफिट का स्कोप तो है. न्यू कंपनी ने प्रॉफिट भी नहीं करती एंड कल को बंद हो गई तो हु इज गोइंग टू टेक दैट हेडेक. सो दे सेड कुछ तो ऐसा ल्यूक्रेटिव ऑफर होना चाहिए विद दीज 3 कंपनीज, न्यू, सिक एंड IBC, कि पीपल फील लाइक गोइंग देयर. सो दे सेड ये स्पेशल सर्कमस्टेंस है. जिस सिचुएशन में ओल्ड कंपनी कैन गिव यू 60 लाख, उस सिचुएशन में दिस कंपनी कैन गिव यू इवन मोर. मतलब anything above the limit. They can give you double, 120 lakh also. Now it's a lucrative offer. So we said how much? Sick company can do it for 5 years from scheme of revival. New company can do it for 7 years and from incorporation. And IBC can do it for 5 years from approval of scheme. Double दे दो बिंदास, no problem. ठीक है. And lastly, if the fees Director's remuneration is fixed by NCLT or BIFR. BIFR is Board of Industrial and Financial Reconstruction. If they have fixed their remuneration, तो वो जो बोले वो चलता है. Okay? So this will be allowed without limits. कुछ भी चलेगा. This is considered special circumstance. 3 हुए ना? Okay? These are the circumstances. इसमें अगर आपको देना है तो ये circumstance में there are 3 conditions, 3 additional conditions. इफ यू लाइक मैम आई एम डन, क्यों एंड के लिए छोड़ रहे हो ना? क्योंकि शेड्यूल 5 जैसे ही छोड़ा 197 गया, 196 गया, क्यों मस्ती करें? ट्रस्ट मी, इट्स एक ही बार, पहली बार तो हर चीज़ मुश्किल होती है, कर लेते ना, फिर यू गेट यूज टू इट. ठीक है. सो 3 कंडीशंस, ये लास्ट है, इसके बाद सब ईजी है. ओके, 3 कंडीशंस बीइंग सबसे पहला कंडीशन व्हेन यू पेइंग दीज स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो वो जो डायरेक्टर जो इसको रिसीव कर रहा है, ही शुड नॉट बी रिसीविंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी एक्सेप्ट दिस. मतलब फिर अगर वो न्यू से ले रहा है तो न्यू को छोड़ के कोई और कंपनी में डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन नहीं लेना चाहिए. ऐसा नहीं उसकी लाइफ में FD नहीं होनी चाहिए. डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन का कोई और स्कोप नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, और अगर यहाँ पे ले रहा है तो ये 2 कंपनी से ऑलरेडी ले रहा है, अपनी से और दूसरी से, उसको छोड़ के तीसरी नहीं. ओके. सेकेंड इज देयर शुड बी NOC रिसीव्ड. NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ओके, ये हमारी भाषा में हम बोल रहे हैं. सो दे से ऑल योर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड टर्म लेंडर्स शुड गिव NOC टू द कंपनी, विच कंपनी विल गिव टू द ऑडिटर, होल टाइम CS और PCS, हु इन टर्न विल गिव अ सर्टिफिकेट टू द कंपनी कि हाँ भाई सब ने दे दिया, एंड दिस कंपनी विल गिव इट टू ROC, ये सर्टिफिकेट कि सब ने NOC दिया है. And third condition, there should be no default in creditors and depositors. No default at all. इनमें डिफॉल्ट होना ही नहीं चाहिए. तो ये आप ये स्पेशल सर्कमस्टेंस वाले लोग. इज दिस ओके? ठीक है. अगर आपको लग रहा है बहुत हो गया भारी, लेट्स कम बैक, रिकलेक्ट करते हैं ना, कोशिश करते हैं. ओके. सो इफ यू सी दिस, हम यहाँ थे. सेक्शन 1 इज कंपनीज हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट. उसने डोर नॉक किया था, खोला था, 197 निकला था, ऑल गुड. ठीक है. सेक्शन 2 वालों के में 2 थे, इनएडिक्वेट प्रॉफिट वालों के पास 2. या तो इफेक्टिव कैपिटल में दे दो या फिर प्रोफेशनल कैपेसिटी दे दो. नॉर्मल लिमिट OR, लिमिट से ज़्यादा देना है तो SR, एंड प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले को तो SR. 4 कंडीशन थी. नॉमिनेशन रेमिशन कमेटी एंड बोर्ड अप्रूव करे, नो डिफॉल्ट, OR SR एंड स्पेशल नोटिस. ठीक है, सिंपल है. 3 में 3 सर्कमस्टांसेस थे, जिसमें फर्स्ट वन वॉज अदर कंपनी पेज, सेकेंड वॉज न्यू सिक एंड IBC एंड OBC अदर बॉडी कॉर्पोरेट, बार बार बोलते ना. ठीक है. NCLT एंड BIFR थर्ड केस. उसमें 3 कंडीशन और हैं. कोई और रेम्यूनरेशन नहीं लेना, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड टर्म लेंडर्स शुड गिव NOC, एंड लास्टली कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए क्रेडिटर्स और डिपॉजिटर्स में. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, फिर ये था इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन, विच यू नो. अब बचा है बस ये, और ये एक सिंपल सी लाइन है,
203 में जाके यू विल नो कि एवरी कंपनी एवरी पर्सन, मेरे को बात बता, एक इंसान एक टाइम पे कितनों का होल्ड टाइम हो सकता है? एक का। बट 203 में ना पब्लिक ने मांग के ना 2 एक्सेप्शन ले लिए कि हमको 2 जगह काम करने दो ना, होल्ड टाइम। यार तुम होल्ड टाइम 2 जगह कैसे? अरे हमको चलेगा ना, हमने कहा चला ले, ठीक है, 2 एक्सेप्शन है वहाँ। सो अ पर्सन कुड वर्क एज होल्ड टाइम एट 2 प्लेसेस। तो हमने उसको रोकने का तरीका यहाँ निकाला है। हमने कहा अगर तू 2 जगह काम करेगा भी ना, रेम्यूनरेशन दैट इज अलाउड इज वॉट इज अलाउड बाय वन बोथ द कंपनीज में जो मैक्सिमम अलाउड है, उसमें जो हायर है दैट शुड बी एग्रीगेट दैट यू रिसीविंग फ्रॉम बोथ। इंग्लिश, if you're working as a whole-time director in more than one companies, then the aggregate remuneration drawn by you from both the companies should not exceed maximum allowed by each of the company, whichever is higher. So if he is working in A and B, both A limited and B limited, ठीक है, A में 50 लाख का प्रॉफिट आया, B में 30 लाख का प्रॉफिट आया, he is MD at both the places. So if you know 5% मिलेगा as per 197, ठीक है. So this he can get 2.5 lakh, here he can get 1.5 lakh. So they said you can't take total 4 lakh from both. Aggregate that you've drawn from both should not exceed maximum allowed by the 2 companies, whichever is higher. So that means maximum that you will draw from both should not exceed 2.5 lakh. तो इट्स लाइक अगर दोनों जगह काम करके लेना 2.5 लाख ही है, उससे अच्छा मैं A लिमिटेड में ढंग से काम कर लूँ ना, आई गेट 2.5 लाख यहीं, वी सेट कर लो. We know how to get things done as per us. Is this okay? ये था 5 बस. एंड तुम पता है ना, पार्ट 1 वॉज वो MDWT मैनेजर के अपॉइंटमेंट का, एंड पार्ट 3 वॉज सर्टिफिकेट. खत्म हुआ शेड्यूल 5. आई होप यू गेट दिस गाइज. अभी अगर आपको समझा भी है, याद हुआ भी है, तो इसकी वैलिडिटी ना बहुत कम है. अगर आपने तुरंत रिवाइज नहीं किया ना, यू विल नॉट रिमेंबर इट. इज दिस ओके? सो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कोशिश करो आपको ये याद हो जाए. अभी के अभी रिवाइज कर लेना. ओके, सो दिस कंप्लीट शेड्यूल 5. सो नाउ व्हाट वी आर डन विद इज 196, 197 एंड ऑफ कोर्स शेड्यूल 5. ठीक है, अब बचा क्या? 198 इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, 199 is recovery of remission in certain cases, 200 is your next thing, which is how to make applications, and CG has the power, like CG had, now company has the power to fix remuneration. 201 is application to CG, जो कि अब सिर्फ एक ही काम के लिए हो सकता है. फिर 202, 203 आई ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 204, 205 ये सेक्रेटरी के लिए हैं, कंपनी सेक्रेटरी के रूल्स हैं. Okay, so that you can see in the next video, because we are trying to make separate videos for every topic. Okay.